شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ مل کر مبارک منسٹری میں خدمت کر رہے ہیں، سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قربانی سے پہلے قربانی۔ عدن کے فال ڈاؤن سے پہلے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو کیا ہوا، وہ ہے کہ اس نے یعنی کہ خدا نے تمام پروگرام یسایہ نبی اس کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا باب ہے 46واں اور آیت 10ویں میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے دنوں میں تمام حال بتائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ کی بات کو اور زوم کیا گیا ہے، بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے وہ اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہ فال ڈاؤن کی بات ہے کہ جب فال ڈاؤن ہوا عدن میں تو پہلے سے ہی یہ سارا پروگرام بنایا گیا اور وہ یسایہ کی کتاب میں بھی بیان کیا گیا، پھر یسایہ کے بیان کو مکاشفہ میں زوم کیا گیا۔ اور اب آگے دیکھیے کہ لکھا ہے کہ حرام حیوان یعنی کہ مخالف مسیح، جو مخالف مسیح کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ان کے نام برے کی کتاب میں نہیں لکھے ہوں گے۔ پتا ہے کہ کیا ہوگا وہ برہ جو ہے، یہی بات ہے کہ پہلے ہی سے برہ تیار کیا گیا ہے۔ فال ڈاؤن ہوتے ہی اس بات کا پورا ایک پلان، پوری ایک تصویر بنائی گئی کہ آدم عدن میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے، یہ روبوٹ کی طرح خدا نے نہیں بنایا۔ خدا کو پتا تھا یہ کیا کرے گا اور خدا نے اس کا سدے باب، اس کی محافظت، اس کو سنبھالنے کا جو منصوبہ ہے وہ اس نے بنا لیا تھا کہ اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن خدا نے اس پر کنٹرول نہیں کیا آدم پر، کیونکہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے۔ خدا ڈرتا نہیں ہے انسان سے، خدا حالات سے نہیں ڈرتا، خدا کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ خدا بگڑے ہوئے کو درست بنانا جانتا ہے اور بناتا ہے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو کمزور ہیں، خدا کمزور نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتا نہیں۔ اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ تو آدم کا فال ڈاؤن ہوا، عدن کا فال ڈاؤن ہوا تو خدا نے برے کو تیار کیا اور پھر برے کو تیار کر کے پھر اس کے لیے ایک کتاب بنا دی کہ اب پھر آزاد کر دیا گیا کہ برے کو جو چنے گا، پہلے تھا گناہ چن لیا، نیکی چن لی، اب پھر برے کو بھیج دیا کہ اب تم بچنا اگر چاہتے ہو تو برے کی کتاب میں نام لکھوا لو۔ وہ بھی خدا زبردستی بھی کسی کو بچانا نہیں چاہتا، زبردستی کسی کو نجات نہیں دیتا، زبردستی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا۔ اندھا برتم آئی ہے تو یسوع اس کو پوچھتا ہے تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟
38 साल का बीमार है, तो यीशु उसको पूछता है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंडरस्टूड बात है। वो चाहता है कि उसे शिफा मिले, अंधा चाहता है कि उसकी आंखें हो जाए, लेकिन फिर भी यीशु ने नहीं किया। अगर बीबी एक मिली सुखार के कुएं पर, तो उसको कहा कि अगर तू मुझसे मांगती, ये नहीं कहा कि ये ले पानी मुझसे पी, अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाई। माती मारी जाती है, मैंने देखा कई लोगों की, कि जब वो किसी के साथ बात करते हैं तो ऐसे खुददार हो जाते हैं और ऐसी ऐसी बड़ी बातें कर देते हैं। तो यीशु नहीं ऐसे करता। यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती, अगर तू मांगती तो मैं देता। फिर उसने कहा, तू मुझे दे। जब उस औरत ने कहा मुझे दे, फिर उसको दिया गया। तो ये जो लिखा है यहां पर कि जो हैवान के साथ होंगे वो मखालफे मसीह होंगे, तो मखालफे मसीह जो है उनके नाम नहीं लिखे गए होंगे। इसलिए पहला खत पतरस का उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे चाल चलन को यीशु दुरुस्त कर सकता है, बर्रा संभाल सकता है और कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यीशु दुनिया के आगाज से ही तैयार हो गया कि मुझे ऐसे और इसके रहने वालों को बचाना है। अपना खून देकर एक एक कतरा इसकी नस्लों में डालकर इसकी कौम को, इसके कबीले को बचाना है, नई जिंदगी देनी है, ताकि ये इंसान तन्हा ना रहे, तन्हा दुखों में गर्क ना हो जाए। खुदा इब्तिदा से सब कुछ जानता है कि आदम नाफरमानी करेगा, इसकी नस्ल बेवफा होगी, नूह के जमाना तक बुराई में कितना अरूज होगा, फिर उनकी हलाकत कैसे होगी, लूत का जमाना और लूत के जमाने के लोगों की तबाही। यहां पर एक बात बड़ी गौर तलब है, वो है कि पहले खुदा ने पूरी दुनिया को सजा दी। अब देखो कि वक्त की नजाकत क्या है। खुदा ने पहले पूरी दुनिया को सजा दी, और वो नूह का टाइम था कि पूरी दुनिया के गुनाह की सजा पूरी दुनिया को मिली। फिर नूह के बाद जो जो शहर गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। पहले दुनिया, फिर दुनिया पर के शहर, और फिर शहरों के बाद क्या हुआ, फिर आ गया खानदानों में। जो जो कबीला, जो जो खानदान, जो लोग गुनाह कर रहे हैं, उनके कबीले को, उनके खानदान को सजा दी जा रही है। लेकिन अब क्या है, अब का टाइम है कि जो जान गुनाह करेगी, जो करेगा वही भरेगा। ये नहीं कि बाप करे और सजा बेटों को, बेटे करें और सजा बड़ों को। यूरोप में इसी तरह से है, जिस किसी का कोई गुनाह है, ना कोई मां को पूछता है, ना बाप को, ना भाई को। जिसने गुनाह किया है, जिसने गलत किया है, जिसने हुकूमत की मुखालफत में कुछ कहा है, उसी को सजा मिलेगी, दूसरे को नहीं। अब भी वही है मसीह में, क्योंकि ये यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन, ये सब के सब लोग इस तरह से बाइबल को फॉलो करते हैं जैसे बाइबल इनके अंदर रची बसी है। कुछ लोग हैं दावाए सुकून तो देते हैं, दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, हमारी तरह के हो जाओ, लेकिन उनके अंदर क्या है कि जिस बात की वो तालीम देते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते। 1 किलो दूध भी खालिस नहीं मिलता, कोई चीज खालिस नहीं है। अगर जो वो कहते हैं, क्या वो जो कहते हैं क्या वो उनके अंदर है? यूरोपियन लोग जो हैं ये मसीह के कहलाते हैं,
डंडोरा नहीं पीटते, बल्कि उनके अंदर मसीह जिंदा है, उनके अंदर चलती फिरती बाइबल है। वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, गरीबों का हक देते हैं उनको, गरीबों की तरफदारी करते हैं, इंसाफ का बोलबाला है, कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करता। जो कोई बदी करता है, गुनाह करता है, चोरी करता है, चिकारी करता है, धोखा देता है, फ्रॉड करता है, उसको पकड़ते हैं, उसको सजा देते हैं। कानून की बालादस्ती है, कोई किसी को खराब नहीं कर सकता, कोई किसी पर धौंस नहीं जमा सकता। जिसका जो राइट है उसी का ही राइट है, कोई दूसरा बंदा उसके हक को मार नहीं सकता। किसी का ये नहीं है कि सिफारिश आ गई, कोई सिफारिश नहीं मानता, कोई लाइन को नहीं क्रॉस कर सकता, अपनी बारी का इंतजार करना है। ये सारी चीजें जो है ये एक रास्तबाजी की बादशाही की बात है। इसलिए मसीह खुदावंद ने बड़ा साफ और वाज़ेह कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। जो मुर्दे हैं वो मुर्दे दफन करते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, मुर्दे मुर्दों को दफन करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर मसीह नहीं, जिनके अंदर सुकून नहीं, जिनके अंदर इत्मीनान नहीं, जिनके अंदर कानून की, शरीयत की ताबेदारी नहीं, वो मुर्दा है। मुर्दा कानून नहीं मानते, मुर्दे शरीयत नहीं मानते, मुर्दे कानून की ताबेदारी नहीं करते, मुर्दों को कोई परवाह नहीं। आने वाले दिनों में मेरी एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि सब कुछ हकीकत है। जो कुछ ये दुनिया में हो रहा है ये सब कुछ हकीकत पे है। इसका असल जो है वो दूसरे और मकामों में है, ये नकल है दुनिया में। और जो दुनिया के लोग हैं वो नकली हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा के लोग रहते हैं, खुदा के लोग हैं। वो किसी का किसी तौर से भी हक नहीं मारते। सदूम अमूरा क्यों तबाह हुआ, ये भी एक वीडियो आएगी आने वाले दिनों में, मैं बनाऊंगा कि सदूम अमूरा को बर्बाद क्यों किया गया, उसकी वजह क्या थी। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं इसका रिजल्ट है, इसका नतीजा है। अब आपका फैसला है, आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो मुर्दा हालत में हैं। आपको पता है जब मसीह खुदावंद ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, तो आपको पता है कौन से मुर्दे हैं जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ट्रांसजेंडर जब मरते हैं, जो हिजड़े हैं या खुसरे हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनको आम लोग नहीं दफन करते, ख्वाजा सरा ही ख्वाजा सराओं को दफन करते हैं। इनके जनाजे नहीं पढ़े जाते, इनके वाव वेला नहीं होता, क्योंकि मुर्दा है। ऐसी हालत में लोगों की नजर में, खानदान की नजर में वो कट चुके हैं, वो हिस्सा नहीं है। इसी तरह जो कोई खुदा की मोहब्बत से, मसीह खुदावंद की पहचान से, उस बर्रा की किताब के जदूल में से निकल चुके हैं, वो सब के सब मौत की हालत में हैं। वो जिंदा तो कहलाते हैं लेकिन हैं मुर्दा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी हालत में रहें? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से पहचान मैंने आपको बताई है कि जो मुर्दा हालत में है उनको कोई परवाह नहीं, ना कानून की, ना रिश्तों की, ना शरीयत की, ना खुदा की, क्योंकि वो मुर्दा हालत में है। और जो भी शख्स, कोई पादरी है, कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाते हो, आप बहुत सियाने हो, कि जो भी है, जो ये नहीं मान रहे, आप उनको, आपको जितना मर्जी मुर्दे को मेकअप कर लें,
कोई भी मुर्दे को किस नहीं करता, कोई भी मुर्दे के साथ जफ्फी डाल के नहीं सोता, कोई भी मुर्दे के साथ चाहता नहीं कि वो उसके साथ लेटे टाइम गुजारे। नहीं, अगर कोई कानून को, शरीयत को, खुदा की मखलूक को, खुदा के कवानीन को परवाह नहीं करता तो वो मुर्दा हालत में है। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहें? भले वो किस तरह का मेकअप करके बैठे हैं, मजहब का किस तरह का उन्होंने ढोंग रचाया है। बाइबल तो ये कहती है साफ तौर पे कि उस दिन मैं उनको साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। कौमे की हालत में हैं लोग। कौमा जो है ना, इसका भी मतलब मौत ही है, ठहर जाना, साकन हो जाना। जो साकन हो गया अपनी जिंदगी में वो मौत की हालत में है। और जिनको खुदा का रहम जिन पर हो गया, जिनको रूहुल कुदस मिल गया, जिनकी नसों में मसीह का खून चल रहा है, वो ताबेदारी करते हैं। उनके अंदर लालच नहीं है, उनके अंदर खुद गर्जी नहीं है, उनके अंदर मोहब्बत है, उनके अंदर एक किसी को दूसरे की इज्जत है, रुकना जानते हैं। वो फॉल डाउन में नहीं जाते। आदम फॉल डाउन उस वक्त हुआ जब वो खुद गर्ज हो गया। खुदा ने आदम को छोटा खुदा बनाया था। खुदा ने कहा तेरी ये बादशाही है, तेरे इख्तियार में है ये सब कुछ, पर मेरे तू ताबे रहना। चिड़ियां, कौवे, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे सब सूरज उठने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले 4:30-5 बजे जाग जाते हैं। उन्होंने कौन सा किसी दफ्तर जाना है, उन्होंने कौन से जहाज चलाने हैं, उन्होंने कौन सी नौकरी करनी है, लेकिन उनको पता है, उनकी आदत है, उनकी सरिश्त में ये बात पड़ी हुई है कि खुदा ठंडे वक्त में आकर मिलता था, देखता था हमें। इसलिए वो खुदा के विजिट करने से पहले वो जाग जाते थे। उस दिन वो जाग गए, चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, झूल रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन आदम छुपा हुआ है। क्योंकि जब किसी की जिंदगी में खुद गर्जी आ जाती है, जब अपने ऊपर वो किसी को नहीं मानता, तो फिर उसकी खुद गर्जी के सबब से वो छुपता फिरता है। फिर उसके अंदर से खुशी खत्म हो जाती है, वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। और जो ताबेदारी में रहता है, खुदा है ऊपर, उसके बाद आदम है, फिर परिंदे चरिंदे हैं। परिंदे चरिंदे खुदा को अपने ऊपर मान रहे हैं, लेकिन आदम ने खुद गर्जी कर ली। जिस घर में बीवी अपने शौहर के ऊपर डोमिनेट करती है वो फॉल डाउन में चली जाती है। जिस घर में बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं फॉल डाउन में चले जाते हैं। जिस मुल्क में लोग हुकूमत को डोमिनेट करते हैं लोगों का नाश हो जाता है। जहां पर भी नीचे के लोग ऊपर आते हैं, अपोजिट होता है काम, वहां पर फॉल डाउन होता है। वहां पर बचाने का सबब ढूंढा जाता है और दुनिया के फाल को मसीह बहाल करता है। लेकिन जो अभी तक उसके बहाली के दरवाजे को खुले हुए को नहीं अडॉप्ट करते, नहीं लेते, नहीं गुजरते, नहीं दाखिल होते, उनका नाम उसकी किताब में नहीं आएगा। इसलिए कुर्बानी से पहले जो कुर्बान हुआ है उसकी किताब में नाम होना जरूरी है, वरना घाटे का मामला है, तबाही का मामला है, बर्बादी का मामला है, मुर्दा हालत है। और मैंने बताया है कि किन के कोई जनाजे नहीं पड़ता, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। खुदावंद आपको इस कलाम के समझने की तौफीक दे और इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें ताकि बहाली हो जाए, फाल से निकलकर बहाल हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। खुश रहें।